मैं तो सीएससी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरा इलेक्ट्रिकल है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेरा मैकेनिकल है. So how should I move to data engineering? I made a video of getting 12 offers. बाप रे 12 तो फ्रेशर्स इंडिया में 6 LPA एवरीवेयर है. मतलब चाहे आप एसडी में जाओ, डी में जाओ, डेटा साइंस में जाओ, एवरीवन इज गेटिंग अराउंड 6. आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते फिलहाल मार्केट सिचुएशन को देखते हुए कि मैं डेटा इंजीनियर में ही अप्लाई करूंगा. सारे राउंड लेने के बाद देवर लाइक कि नहीं हम 35 एबव भी देने को रेडी है. ओहो इफ योर इंटरव्यू पहले तो आपको स्टार्टअप में अप्लाई करना पड़ेगा मोस्टली, क्योंकि जो ये एमएनसीज होती है वो मोस्टली नहीं करती कंसिडर. Hey guys, welcome to the show Data Buzz with Amir, and today we are going to talk about the data engineering, how to get started with data engineering. What is data engineering? Is it easy to be a data engineer? What are the misconceptions about data engineering? And all of those questions that we have today, we will answer those. And we have a very special guest with us today who is Manish Kumar. He is a special guest because of one reason. Because of the two reasons basically. The first being is मैंने उनसे personally सीखा है. I've learned a lot from him. And the second thing is his channel helped me a lot preparing my interviews and all of the studies that I did. So let's welcome Manish Kumar to the channel, and all over to you Manish. Please introduce yourself. आप कहाँ से हो, कहाँ से आपने पढ़ाई की, कैसे आपने इस जर्नी की शुरुआत की, etc. The floor is all yours. Okay, so yeah, thank you, Ame, first of all, to having me in this podcast. And I think many of you would be knowing. So let me first introduce myself, and then we'll go ahead and let's see what all things Ame has to discuss on this podcast. So first of all, my name is Manish Kumar, and I am from Bihar. So I have done my graduation in 2019 from NIT Trichy, and after that I joined one of the organization, and that was a startup. I worked there for 6 months, and they were into mostly Salesforce, so I didn't like the work, and then I joined JDS Associate. Actually, I wanted to be a data scientist at that time in 2019, but accidentally I also became a data engineer. So I would say I'm also an accidental data engineer, just like I'm here. And then after 2.5 years, I moved to another organization. That is where currently I'm working, and that is a Geo. So if you are in India, you might be knowing Geo, that has revolutionized the data industry. We used to hit around 2 to 300 rupees per month per GB or 1.5 GB, and from there like Geo came into the picture, and now I'm working with that organization currently as a senior data engineer. So I think that is all about me. Apart from this, I like to educate people, and that is where I uploaded few videos on my YouTube channel on Spark, since I have worked on Spark very deeply, or I would say I had a deep problem to solve at that time. So that is where all the learning came from. So yeah, pretty much this is all about me. That was a great introduction. First hand मैंने आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस की हुई है. मैं जब प्रिपेयर कर रहा था इंटरव्यूज के लिए तो your channel was one of the best resources that I've ever gotten. तो मेरा एक criteria था basically to find out the good resources, right? So I spent like two days to research just a good channel that can teach me the basics and everything. तो मैंने क्या किया था कि मेरा criteria यही था कि जिसके व्यूज ज्यादा कम है उधर जाओ एंड देन सी. तो मुझे आपका एक पहले ये मिला था, एक पॉडकास्ट मिला था विद वन ऑफ द जियो इंजीनियर्स सेइंग कि स्पार्क का कुछ 1000 GB का फाइल होगा तो उसको कैसे प्रोसेस करेंगे. एंड दैट टाइम लाइक आई वॉच्ड योर प्लेलिस्ट एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री. Like I would definitely recommend everyone to watch his channel and go over the Spark playlist to get in detail understanding. But थोड़ा सा अपन पीछे आते हैं. हम लोग यूट्यूब जर्नी के बहुत आगे चले गए, बट लाइक हु वाज मनीष बिफोर बीइंग अ यूट्यूबर. आपने जैसे बोला आप बिहार से हो, उसके बाद यू वेंट टू एनआईटी त्रिची, बट लाइक व्हाट वाज योर बैकग्राउंड? लाइक बैचलर्स आपने किस में किया या कंप्यूटर साइंस में ही थे और आगे जाके डेटा इंजीनियरिंग किया? लाइक
what was the story? So there are many people still thinks कि I am from CS background, but actually मैं metallurgy background से था, and there is a Wow. different story कि मैं how I landed up in metallurgy and materials that I didn't even know when I was applying. So yeah, मैं एक नॉन कोर बैकग्राउंड से हूँ, और वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में मैंने अपनी जो बैकग्राउंड थी वहीं पे पढ़ाई करी, बट देन आई रियलाइज कि नहीं, मुझे थोड़ा और कुछ करना चाहिए लाइफ में, एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट Python, and at that time, as I said earlier, also data science was in a demand. So I was learning data science, and then I joined the startup. So ज़्यादा ऐसा नहीं है. I just wanted to say कि मैं भी कोई CS बैकग्राउंड से नहीं हूँ. तो people think कि he और मतलब there are many people who think कि जो CS बैकग्राउंड से होते हैं वही बेटर कर पाते हैं इन डेटा Right. इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या यहाँ पे. तो आई हैव अ टॉपमेट अकाउंट, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत बार सुना है लोगों से कि मैं तो CSE बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरा इलेक्ट्रिकल है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेरा मैकेनिकल है, सो हाउ शुड आई मूव टू डेटा इंजीनियरिंग. तो मैं यही कहना Right. चाहूँगा कि ये मैटर नहीं करता. इफ़ यू हैव डिटरमाइंड एनफ कि आई हैव टू गो इन टू पर्टिकुलर फील्ड, देन यू कैन गो. और वो जो एक लाइन है, इंजीनियर कुछ भी कर सकते, सो दैट Actually. रिमेन्स. एक्चुअली लाइक मेरा भी बैकग्राउंड सीएस से नहीं है. मैं ईएनटीसी पढ़ा हुआ हूँ बैचलर्स में. सो लाइक आई डिड माय बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस एंड देन आई वेंट एंड आई डिड माय मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस. बट लाइक आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस. इट्स जस्ट दैट कि मुझे वो सीट नहीं मिली कंप्यूटर साइंस की. तो आई वेंट फॉर द बेस्ट बेस्ट कॉलेज दैट माय मार्क्स कुड गेट मी इन. But the electronics was not the field that I wanted to study. But again, जैसे आपने बोला, I completely agree कि it doesn't matter कि आप आपका बैकग्राउंड क्या है, बैचलर से मेटलर्जी हो या सिविल हो या केमिकल हो. मैंने तो लिटरली मेटलर्जी तो भी आई डोंट नो लाइक व्हाट इज द सिलेबस ऑफ इट, बट मैंने तो सुना है केमिकल इंजीनियर भी आजकल कंप्यूटर साइंस कर रहे. तो यू कैन ऑलवेज डू इट. One of my बट friend from chemical engineering, he is a data scientist currently. वाओ, रियली? Yes. That's great. That's great. तो आपने NIT त्रिची से बैचलर्स किया, Mhm. फिर आपने एक इंटर्नशिप ज्वाइन करी लाइक कोर में ही, एंड देन यू मूव अहेड विद द डेटा साइंस जॉब, राइट? सो योर फर्स्ट जॉब वाज अ डेटा साइंस और अ डेटा इंजीनियरिंग जॉब? नहीं, so my first job was in Salesforce development. So as I ओ, said earlier कि मैं डेटा साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, एंड देन मुझे जो कंपनी मिली, मेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप है, और वहाँ पे वो सेल्सफोर्स में ही काम करते थे. दे डिडंट हैड मेनी प्रोजेक्ट, और दे डिडंट हैड एट ऑल any project in data science. So since I was राइट. very uh, what we can say कि I was very into data science, so I was like कि नहीं, मुझे कुछ तो data science, data analytics का ही काम दो. तो लकीली राइट. उनके पास एक ऐसे ही छोटा सा POC था जो that they were doing. So they introduced me to that project, and then I get a chance to work on talent ETL just for 1 or 1.5 month, and then I moved क्योंकि that time I was not liking the work that they were asking me to do. So after that, like when I joined the JDS Associate in 2020 during the COVID time, just COVID hit, and from there, like I got a chance to work on big data technology. Again, I didn't get a chance to work on data science project. I was also looking for a data science project in JDS Associate, but I didn't get a chance. And they mapped me into one of the data engineering team. And then I started राइट. liking the work, and then now I'm a data The engineer. rest is history. Yes. So like थोड़ा सा एक कदम पीछे आता है. You mentioned like you started with the startup and then आपको ZS में मिला. कैसे हुआ वो? Like did you participate in something competition or something like that? What happened exactly? Exactly, even I'm not sure, but क्या हुआ था कि I had applied for data science, and I had done one hackathon on NLP in their project. Although Right. I didn't succeed, I think 84-85% of the accuracy was there at that time. I don't remember exactly the number, but yeah, it was somewhere around 80 to 85%. So I didn't get selected in that project, but I think they had my resume at that time. After that, I never applied for GS, and they reached out to me one day saying कि we are looking for a
developer. Not at the time they were not saying ki which developer they are looking for. They just said ki we are looking for one freshers. At the time I was a fresher, so they considered me as a fresher because I had just 6 months of experience. So yeah, that is how they reached out to me. But apart from that, I had another offer at that time from Equifax, and they were into data science project, but their review was not good, so I chose JDS over Equifax. But yeah, they Right. also had a data science project, and they were giving me. But I don't know why did I choose JDS at that time. No worries, that's fine. Like 2019 में I guess data science and machine learning was like really boom field. Like I also wanted to be a data scientist, and like I shared this post on LinkedIn ki like how I wanted to be a data scientist, but I ended up being a data engineer, and now I love the field that I work in. और मुझे ये ऐसे बहुत ज्यादा दुख होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि डेटा इंजीनियरिंग क्या है। मतलब मैं लिटरली लोगों को बताता हूँ मैं डेटा इंजीनियर हूँ, तो बोलता है मतलब ये क्या डेटा होता इंजीनियर है? क्या करता है? ये क्या होता है? डेटा साइंस मतलब तू मशीन लर्निंग मॉडल बनाता है? ये सो लाइक देयर इज़ एन अवेयरनेस इश्यू और इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि 2019 में जब व्हेन आई वाज़ अप्लाइंग फॉर द जॉब्स, ऐसे डेटा इंजीनियरिंग ऐसे लाइक टाइटल भी नहीं था। लाइक ETL तो developer, हाँ, ईटीएल Informatica डेवलपर या फिर developer, डेटाबेस ETL developer, राइट, data राइट, राइट, developer, राइट। this way. अभी तो डेटा इंजीनियर बहुत लाइक देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स बट एनीवेज कमिंग बैक टू द ऑफर दैट यू सेड लाइक यू हैड एंड वन मोर ऑफर व्हेन यू लाइक आपको जब जीएस में ऑफर भी था हम्म, बट लाइक आपको कोई और भी ऑफर्स थे जब आप आगे गए लाइक हाउ डिड जियो हैपन लाइक द जर्नी बिटवीन द जीएस टू जियो लाइक हाउ वाज इट Like I joined in 2020 in ZS, and then after 2.5 years, after 2 years, I started looking for a change because the work that I was doing kind of was getting monotonically same. What हाँ हाँ what हाँ do they say the term? I don't know. So that was getting the same work I was doing. I had learned enough, and I had implemented the pipeline. I had seen the pipeline breaking multiple times. So there was one code that I had seen ki if you work in a company for 1 year, then you only build, but you don't know how to fix the pipeline. Means you haven't seen how things break in production. And if you have yeah worked for 2 years, then you whatever you have built in first year, second year you see how things breaks and how do you fix that. So basically debugging skills that you get, and that right right that got stuck in my mind, and I was like, okay, now even I'm not learning, and it has been 2 years, so I should look for another organization where I'll be getting another chance to learn new technology, maybe new data domain or anything. So I right started looking for a change, and then I got multiple offers, and that is where I went viral. I made a video of getting 12 offers. I बाप रे 12 Yeah, बाप I रे had 12 offers at that time, and then I chose Geo in those 12 offers. नाइस नाइस लाइक एक साल में आप बनाते हो और एक साल में आप ब्रेक करते हुए देखते हो ये मंत्र Yes, आपने बोला था मुझे पॉडकास्ट से पहले से लाइक दैट that इज happens. क्रेजी Like लाइक even in या Geos, या the same thing नाउ will be दैट happening. यस बट आपने बोला आपको आपके पास 12 ऑफर्स थे एंड लाइक ऑल ऑफ देम वर डेटा इंजीनियरिंग ऑफर्स लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में भी थे मशीन लर्निंग में भी थे और लाइक हाउ इज इट Nahi. So I believe in doing one thing at a time. So my data engineering me after that, like I started liking the work, and then I was like कि चलो data engineer ही रहते हैं in अभी फिलहाल के लिए. In future, maybe if I'll have a plan, then I'll move either from to data science field or to software development. I have both path open for me. Or all the data engineers out there, they have always the two path to go at least. यस यस आई कंप्लीटली एग्री विद और लाइक ये कब की बात है लाइक ये साल आपको याद है ये कब आपको ऑफर्स मिली थी 2022 I think 2022. अच्छा So what 2020 was जब the मैं actual यहाँ question? मैं भूल गया. द क्वेश्चन इज कि आपको ऑफर्स कौन सी लाइक साल में आई थी हाँ 2022 में आया था. डेटा इंजीनियरिंग के ही सारे ऑफर्स थे, एंड राइट कुछ सर्विस बेस्ड थे, कुछ प्रोडक्ट बेस्ड थे, तो इट वाज मिक्सचर ऑफ बोथ. आपको याद है कौन सी कंपनीज से आपका ऑफर्स आए थे कुछ याद है. बड़े हाँ नाम्स हाँ में बड़े नाम्स जो थे वो थे, एक जियो था, पेपाल था,
हाँ एंड हाँ पेटीएम था। बाप रे, यस। बाप रे आई यस थिंक ये तीन बड़े नाम थे। उसके बाद एक और कंपनी कैप्री ग्लोबल करके, दे आर हम्म आल्सो अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। उसके बाद हम्म ईपैम था, डेलॉयट था, ट्रेडेंस था, ऐसे करके और बहुत सारी कंपनी थी। मतलब टोटल 12 ऑफर्स दैट दे रोल्ड आउट। उसके बाद अलावा तो बहुत सारे वैसे भी थे जिन्होंने देवर भी लाइक कि नहीं 3 इयर्स में मैं इतना पे नहीं कर पाऊंगा। इन द लास्ट राइट मोमेंट इवन आई थिंक टारगेट वाज द कंपनी, जो कि सारे राउंड लेने के बाद देवर लाइक कि नहीं नहीं हम 35 अबव भी देने को रेडी है, योर ओह इंटरव्यू इज गुड। मैंने बोला ओके ठीक नाइस है। बट एट लास्ट तो आपने मोमेंट देवर, टारगेट हाँ, क्यों नहीं चूज किया आपने? क्योंकि वो फिर पैसे नहीं दिए ना। उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं मैक्सिमम वी कैन ऑफर 25 का, उससे ज़्यादा तो मेरे पास पहले से है। तो आई वॉन्ट अच्छा बी एबल अच्छा टू ज्वाइन एंड ऑफ कोर्स आपने पहले बोला कि वी कैन रीच टिल 35 ऑल्सो, दैट्स व्हाई आई गेव द इंटरव्यू, अदरवाइज आई वुडंट हैव गिवन ऑल्सो। डैम yep like time is money actually और like coming back आपने बोला कि you had like a lot of offers with varying things right आपके पास 25 से ऊपर already था so like what was the minimum and what was the maximum that you got and like what is the general average package in India for a data engineer with 3+ of years experience? सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि मिनिमम कितने थे, तो मिनिमम 16 या 16.5 ऐसा कुछ था, 16 to 17 के बीच में था। राइट। एंड मैक्सिमम दैट एवरीवन नोस दैट आई कैन नॉट से, बट यस ओके। एवरीवन नोस। ये सो Yeah. हाँ, ये हो गया। अब बात करते हैं कि 3 साल के रेंज में क्या मिलेगा। तो सिंस आई हैव हाँ गॉट अ हाँ चांस, मैं सबका बता देता हूँ कि अगर कोई हाँ फ्रेशर्स है तो कितना मिलेगा। Sure. तो फ्रेशर्स Yeah. इंडिया में 6 LPA एवरीवेयर है। मतलब चाहे आप SDE में जाओ, DE में जाओ, डेटा साइंस में जाओ, एवरीवन इज गेटिंग अराउंड 6। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटलायर। Right, सो right. इसके अलावा व्हेन यू हैव 2+ years ऑफ एक्सपीरियंस, 2 to 3 के रेंज में हो, तो यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर बिटवीन 12 to 15। एंड देन Yeah. 3 to 5 के रेंज में आई हैव सीन पीपल गेटिंग फ्रॉम 20 to 30 का रेंज। सम आउटलायर आर स्टिल देयर जो कि 40-50 तक जाता है, बट जनरली तो ये सारी फाइन कंपनीज होती है जो आप आउटलायर्स नो, बोल रहे हो या फिर नो, या आउटलायर में फैंग ही नहीं होती। बहुत सारी स्टार्टअप भी होती हैं, और जैसे ओह अटलासियन हो गई, इंट्यूट हो गई, तो ये सब फैंग के लिस्ट में तो नहीं आती, बट या दे पे वेल। दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नो बट हाँ। आप अप्लाई एंड कैसे हाँ, या एक यू चीज वर और, सेइंग। या अगर गुड थिंग आपको मान लो किसी कंपनी का नहीं पता चल रहा है कि, क्योंकि अभी जो ग्लास डोर या अपना एम्बिशन बॉक्स जो है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी दिखती है, डेटा इंजीनियर की नहीं दिखती है। तो एग्जैक्टली in India, it's mostly like whatever SD are getting paid, you will be getting paid similar payroll. So if they are getting paid 5 lakh, अगर आपको नहीं मिल रहा है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर्च करो, whatever the number comes, you can quote the same. राइट आपके पास इतने सारे ऑफर्स थे आपके पास इंटरव्यूज नंबर ऑफ इंटरव्यूज कितने थे? याद नहीं, बट 30-40 तो होंगे। 30 30 वाओ दैट्स अ रियली ग्रेट नंबर सो लाइक आप व्यूअर्स को बताएं कि लाइक आप अप्लाई कैसे करते थे जॉब्स के लिए या फिर आप ढूंढते कैसे थे कि ये दिस इज द काइंड ऑफ जॉब आई वांट टू अप्लाई फॉर और लाइक वेयर डू यू अप्लाई naukri.com होगा या लिंक्डइन हो गया और लाइक आप ईमेल करते थे रिक्रूटर्स को लाइक हाउ आर यू अप्लाइंग? सो मोस्टली मैंने अप्लाई नहीं किया था। मैंने naukri.com पे प्रोफाइल डाला था, एंड लिंक्डइन पे ओपन बाप टू रे वर्क डाला था। राइट Since I have a tag that works, like द I टैग ऑफ have seen एनआईटी beyond पीछे। people, LinkedIn, people say he is from NIT or IIT, तो क्या हो गया। बट HR के दिमाग में तो मैटर करता है वो, कि अगर उसने कुछ फोड़ा है एक्चुअली तो he had something, otherwise everyone would have done it। मतलब ठीक है, यस like tier 3 people also can be better, and even I have seen many people in my organization जो कि tier 3 कॉलेज हैं, they are better। बट अगर राइट आपको 10,000 लोगों में से एक बंदे फाइंड करने हैं, तो आप कहाँ जाओगे? दैट्स द क्वेश्चन। आप एक्चुअली कहोगे चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, हम क्रीम वाले लोगों में से ढूंढ लेते हैं। उसमें अब 10,000 लोग टोटल है, वहाँ पे 100 ही मिलेंगे, तो 100 में एक फाइंड करना आसान हो जाएगा उनके लिए। सो दे गो फॉर दैट रूट, बट इट डजंट मीन कि आपको जॉब नहीं मिलेगा या आप कैपेबल नहीं हो। आप, मतलब मैं तो बोलता हूँ कि tier 3 वाले कई लोग इतने ज़्यादा कैपेबल होते हैं जो IIT वाले, NIT वाले या कोई और प्रीमियम इंस्टीट्यूट वाले नहीं होते हैं। So I have seen many राइट people, not just one, even my both of the राइट seniors, they are not राइट from NIT or IIT.
बट आई हैव right, लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। तो ये होता है, right, बट हाँ मेरे लिए तो मेरा टाई काम किया था, एंड आई डिडंट अप्रोच टू मेनी कंपनी। कभी कभी लिंक नौकरी पे देखा तो ऐसे जस्ट अप्लाई बटन आता है, वो क्लिक कर दिया, एक्सपीरियंस लिख दिया, तो उतना ही किया था, मैंने ज़्यादा नहीं right, किया था। तो आई गॉट अ कॉल, right, बट अगर आपको ज़्यादा कॉल आने हैं और अगर आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि आपके पास मान लो टैग नहीं है, तो इन दैट केस हाँ, व्हाट हाँ, यू हैव टू डू कि नौकरी पे जाके डेली आप प्रोफाइल अपडेट करो 9 अराउंड 9 o'clock। These are the right, things that you can do to optimize more calls, but not guaranteed that you'll get a call. right, लिंक्डइन भी नहीं था मेरे लिए, तो लिंक्डइन भी काम नहीं किया था। I've seen many people right. saying that LinkedIn work for me, but not for me in that case. Yes. I mean, it depends on people to people. मेरे लिए भी LinkedIn जॉब्स के मामले में तो इतना काम नहीं किया, बट नेटवर्किंग के मामले में इट इज हेल्पिंग मी अ लॉट। हम्म। बट मुझे आपको एक एक सवाल आपसे ये भी पूछना था, जैसे आप हमने स्टार्टिंग में बोला कि अरे लाइक इट डजंट मैटर कि आपका बैचलर्स किस में है वगैरह वगैरह, बट अब अभी सपोज एक बच्चा है जिसके पास टैग नहीं है कॉलेज का, हम्म। जैसे एनआईटी का टैग नहीं है, बट ही इज फ्रॉम मेटलर्जी और ही इज फ्रॉम सिविल और ईएनटीसी, और लाइक ईएनटीसी तो चलो थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस के साथ आ जाता है क्योंकि हम्म। सब्जेक्ट्स भी होते हैं थोड़े से, बट लेट्स से मैकेनिकल के ही भी बच्चे, जैसे मेनी ऑफ सिविल माय फ्रेंड, मैकेनिकल ये सब हाँ, वाले। मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स लाइक, मतलब मैं बार्शी से हूँ, तो बार्शी में लाइक मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स आई डोंट नो लाइक दे समहाउ एवरीवन टुक लाइक केमिकल ब्रांच और सिविल ब्रांच और मैकेनिकल, and now they want to switch it in like computer science. So like what would your advice be to these people कि जिनके पास टैग नहीं है और जो कंप्यूटर साइंस से भी नहीं है, but they want to do something in it, so like what would you advise to them? If they are freshers, then the advice will be different than the seniors. So मैं हाँ, freshers consider करके बता रहा हूँ। हाँ, हाँ, तो हाँ, इफ़ यू आर अ फ्रेशर्स, पहली चीज़ कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते फिलहाल मार्केट सिचुएशन को देखते हुए कि मैं डेटा इंजीनियर right, में ही अप्लाई करूँगा। सो फॉर यू right, ऑल द ऑप्शंस आर ओपन। आपको डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बट इफ़ यू कैन डू सम ऑफ द बेसिक स्टफ इट विल बी गुड। एंड right, देन सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब लोग बोलेंगे कि इतना ज़्यादा कैसे कर सकता है एक बंदा, राइट? और वो एक्सेप्ट एक्सपेक्टेड है कि वो नहीं कर पाएंगे। सो मैं कुछ okay, टेक्नोलॉजी के नाम लेने जा रहा हूँ, ये तो आपके रिज्यूमे में मिनिमम होने ही होने चाहिए। इसके बाद आप जितना अपने आप को बढ़ा सकते हो बढ़ा लो। सबसे हाँ, हाँ, पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि 90% ऑफ द पीपल लाइक प्रोग्रामिंग, ठीक है? right, पहला चीज़ आपको प्रोग्रामिंग करना होगा, रगड़ के करना होगा। इसके अलावा और कुछ बाद में कर लेना, लेकिन ये पहले होना चाहिए। दूसरा आपका हाँ, होगा सिक्वल। okay, देन yes, आपको डेटा डील करने आना चाहिए। डेटा नॉट जस्ट वी डील इन डेटा इंजीनियरिंग, एवरीवेयर इट इज़ गेटिंग डील्ड। सो yeah, इसके अलावा आपको आना चाहिए एक बैकएंड फ्रेमवर्क, लाइक अगर आप पाइथन करते हो तो फास्ट एपीआई कर लो, आप जावा करते हो तो स्प्रिंग बूट कर लो। right, देन इसके अलावा आपको एक्सेल आना चाहिए, एंड right, इसके अलावा आपको पावर बीआई या टैबलू आना चाहिए। correct, absolutely So spot I on, think you have covered three teams altogether, like Python for all three, SDE, DE, data analyst everywhere, yep, then yep, yep, SQL everywhere. आप जो एक्सेल किए वो सिर्फ डेटा एनालिस्ट में काम आएगा, बाकी कहीं नहीं आएगा। आपने जो पावर yep, बीआई करा वो भी डेटा एनालिस्ट में काम आएगा। सो इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी कि चलो डेटा एनालिस्ट में एक फील्ड ओपन हुआ है, सो एटलीस्ट दे विल mm-hmm. कंसीडर यू कि अच्छा यू नो एक्सेल, यू नो सिक्वल, यू नो पावर बीआई, यू नो पाइथन, चलो ये चारों चीज़ मैच कर रहा है, इसको कर लेते हैं। इसी तरीके से जब आप डेटा इंजीनियरिंग साइड में करोगे तो पाइथन सिक्वल देख के आपको बेसिक लेवल पे तो कंसीडर करेंगे, बट अगर आपने स्पार्क लिख दिया तो फिर तो आपको कंसीडर करेंगे ही करेंगे। नॉट I mean, गारंटीड, yes, बट यस, हाँ। yes, सो काइंड ऑफ यू विल बी इन दैट पोजीशन कि आपका हर तरफ कुछ ना कुछ आपका शायद रिज्यूमे सेलेक्टेड होने के चांसेस हैं। but सो yes, दिस विल बी फॉर फ्रेशर्स, बट अगर आप एक्सपीरियंस हो देन यू शुड स्पेशलाइज इन वन। देन आप उसके, क्योंकि फ्रेशर्स के पास क्या होता है ना, वो झूठ भी नहीं बोल सकते, वैसे नहीं करना चाहिए, बट मैं बता रहा हूँ क्योंकि अब इंडस्ट्री वैसी है, करनी पड़ती है थोड़ी बहुत आगे पीछे। नॉट एग्जैक्टली अगर आपकी नॉलेज है तो आप तो सेलेक्ट हो ही जाओगे, बट थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ता है। सो मान लो आप एक्सपीरियंस हो, 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस हो, एंड यू हैव वर्कड इन बिल्कुल नॉन आईटी फील्ड, like you are in right, support role and now you want to move, so in that case you cannot say कि मैं ये सारी टेक्नोलॉजी जानता हूँ। in that case you will have to be specialized in one,
तो इन दैट केस राइट, आपको चुनना होगा। तो मैं तो अभी डेटा इंजीनियरिंग ही बता सकता हूँ, बाकी तो मुझे और नहीं पता कि 3 साल में क्या एक्सपेक्टेशन आ जाती होगी बाकी फील्ड्स में। बट या इन यस, डेटा यस, इंजीनियरिंग यू विल हैव टू ऐड पाइथन सीक्वल, जो कि फ्रेशर्स ने किया था। देन यू विल हैव टू ऐड Spark. Then you will have to add cloud computing. You will have to add CI/CD pipeline, and then you will have to add orchestration tool like Airflow. इस ये राइट, दिस इज द बेयर मिनिमम यू विल हैव टू डू। वेयर में इसके अलावा कंप्लीटली अगर आप कर बोलता हूँ, अगर इसमें अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं आई है और अगर उधर कुछ और एक्स्ट्रा करने जा रहे हो, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। एंड अगर राइट, आपको पहले से आती है तो स्टार्ट अप्लाइंग, इतने में जॉब यस, मिल जाएगी। उसके बाद फिर कंपनी में जाके एयरफ्लो बोल रहा हूँ, स्नोफ्लेक सीखना है, स्नोफ्लेक सीखो। आपको यप, डीबीटी सीखना है, आपको क्यूबरनेटिस सीखना है, डॉकर सीखना है, नो सिक्वल सीखना है, सब सीख लो, लेकिन अभी नहीं। स्टार्टिंग फेज में यू जस्ट हैव टू डू दिस 5-6 थिंग्स एंड स्टार्ट अप्लाइंग। ये होगा। ये तो यप, बहुत यप, हाई लेवल पे मैंने बताया, बट इसके लिए भी मैंने वो जो 12 ऑफर वाली वीडियो बनाई थी, उसमें आप जाके देख लेना, डिटेल में एक एक लाइन बताया हुआ है कि हाउ यू यस, कैन यप, गेट इनटू डी। यप। आप इनके चैनल डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे वीडियो के नीचे डाल दूँगा। दोज़ वर रियली गुड पॉइंट्स बट मुझे आप अभी अभी ऐसा एक सिनेरियो है, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सिविल सर्विसेज़ करते थे। हम्म। मतलब उन्होंने बैचलर्स के बाद सिविल सर्विस ऑप्शन किया बट लाइक फॉर सम रीज़न उनका हुआ नहीं। बट दे हम्म। आर सुपर टैलेंटेड लाइक आई नो सम ऑफ द गाइस दे आर सुपर टैलेंटेड लाइक crazy talented but somehow like they tried their luck over there but now they want to switch in like after like 3-4 years of gap they want to switch in computer science so like उनके लिए आपकी एडवाइस कैसे चेंज होगी जो आपने पहले बताया या फिर कुछ चेंज होगा या हाउ शुड दे compete with like और दे शुड कंपेयर विद अभी जो 4 साल बाद वाली जो बैचलर्स की बैच है उनसे या फिर उन्होंने compete करना चाहिए लाइक जैसे मेरे दोस्त थे तो मेरे से या फिर मेरे मेरे बैच वाले लोगों से तो लाइक हाउ शुड दे अप्रोच लाइक और स्ट्रेटजी में क्या चेंज करना चाहिए उन्होंने So I have met few people's the way that you are explaining कि रियली they have done preparation for UPSC or SSC for 3 to 4 years, and now राइट they didn't get selected, so they want to move into this field. आईटी नाउ ये Even one guy, I think he might have got, क्योंकि at that time he was giving the interview, हाँ so हाँ he didn't update me after that. So basically मेरा तो यही बोलना होता है कि आपको सबसे पहले तो ऑप्शन बहुत कम होगा, है ना। राइट मतलब नो वन विल बी लुकिंग फॉर यू एट दैट टाइम, क्योंकि क्या होता है कि आप 3-4 साल से दूसरे फील्ड में रहे हो, एंड कंपनीज क्या होती है, आइदर दे लुक फॉर अ फ्रेशर कि मुझे 2024 ग्रेजुएट चाहिए, 23 ग्रेजुएट चाहिए। इवन इफ यू गो टू these big names like Infosys, Capgemini, they also hire specifically for this year pass out candidate. Like they will be like कि 2022 वाले candidate चाहिए, 2023 वाले। But when I think you might have completed your BTech in 2020 or 2019, सो उस केस में आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होती नहीं है। सो सबसे पहले तो राइट आपको स्टार्टअप में अप्लाई करना पड़ेगा मोस्टली, क्योंकि जो ये एमएनसीज होती है वो मोस्टली नहीं करती है कंसीडर। राइट मतलब आई हैव सीन और आई हैव बीन देयर, सो यू विल हैव राइट टू गो टू स्टार्टअप। अगर कोई कर लेता है तो इट्स गुड, लाइक आई हैवंट कम अक्रॉस एनी नेम्स जहाँ पे कि ये कंसिडर करते हैं। हाँ हाँ सो स्टार्टअप होगा और आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा फ्रेशर से, एंड देन यू विल हैव टू बी स्पेशलाइज्ड अगेन इन वन। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं फ्रेशर्स हूँ एंड देन गिव मी द जॉब। सो आपको थोड़ा पोर्टफोलियो दिखाना पड़ेगा, आपको थोड़ा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अगेन आई नो कि ये सारे जेनरिक एडवाइस सबने दिए होंगे, बट क्योंकि राइट सबका अपना अपना स्पेसिफिक यूज केस होता है। कई बार टॉपमेट पे आते हैं तो वो बताते हैं, देन सम ऑफ द थिंग्स दैट आई कैन नॉट से हियर दैट आई टेल देम देयर। राइट राइट सो राइट और स्टार्टअप ही मोस्टली चांस होता है टू गेट इन टू दी प्रोजेक्ट, क्योंकि स्टार्टअप जो है ना वो नॉलेज देखती रादर देन कि आप किस ईयर में पास आउट हुए थे। एंड दे ऑल्सो डोंट गेट अ गुड कैंडिडेट, क्योंकि स्टार्टअप में ऐसा माइंडसेट होता है कि अरे निकाल देंगे, ले ऑफ हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी, सो क्या होगा। सो लाइक मेनी पीपल रिफ्रेन फ्रॉम ज्वाइनिंग दी स्टार्टअप। तो उनके पास ऑप्शन या तो वो ज़्यादा पैसे दे के हायर करेंगे, या कोई नॉलेजेबल बंदा है जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा उसको दे देंगे। सो राइट एवरीवन इज लुकिंग टू गेट अ बेस्ट कैंडिडेट विद चीपर रेट्स, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं। राइट राइट सो बेसिकली स्टार्टअप में जाओ जो जो जॉब मिल रहा है पहले वो लो वहाँ पे पूरा लर्न करो उनका सिस्टम
एंड देन साइड बाय साइड आपका प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बनाते जाओ एंड नहीं, देन अगर इफ यू आर ऑलरेडी इनटू द इंडस्ट्री देन यू डोंट नीड टू मेक योर ओन पोर्टफोलियो। आप उसी को जो कर रहे हो ना, देखो मैं भी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करता। मैंने स्पार्क सीखने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं किया था। व्हाट आई डिड कि मैं जो कर रहा हूँ ना उसमें, जैसे आपने कई बार देखा होगा कोई सेल फाइल आप रन करते हो, है ना। इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं तो लिनक्स सर्वर पे ही काम कर रहे थे, और मोस्टली कई बार सेल फाइल यामल फाइल ऐसे होते हैं ट्रिगर कर रहे होते हैं। बट राइट क्या होता है, मोस्टली लोग क्या करेंगे, वो ट्रिगर करना जान जाएंगे, अरे इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन देना है, ये आर्गुमेंट देना है, ये चल जाएगा। बट कभी उसको खोल के देखो कि उसके अंदर लिखा क्या, वो चल ही क्यों रहा है। लाइक रिसेंटली राइट वन आई गॉट अ चांस, तो मेरे जूनियर थे, उसको मैंने बोला एक टेबल बना लो। एस आई टी हाँ इन्वायरमेंट में अलाउड नहीं होता है, आरबैक हाँ परमिशन रहता है अपना, तो अलाउड नहीं करता है कि आप एज ए यूजर नहीं बना सकते। तो उसने जस्ट बोला कि जस्ट एक सेकंड आप एसआईटी एनवायरनमेंट क्या होता है एक बार बता दो सबको एस आई टी होता है सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सो बेसिकली ओके डेवलपमेंट में हमारी सारी काम हो रही होती है, और एस आई टी में हम उसको मूव करते हैं हायर इन्वायरमेंट में टेस्ट करने के लिए कि अगर इफ़ एवरीथिंग वर्क्स हियर देन आगे चल के भी ये काम करेगा। बट कई बार राइट क्या होता है कि यू ऑल्सो नो कि डेवलपमेंट में सारी डेटा नहीं होती है, एंड दे कैन नॉट गिव यू ऑल द डेटा। इफ़ दे कैन इफ़ दे कॉपी ऑल द डेटा इन ईच इन्वायरमेंट, उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, एंड देन प्रोसेसिंग टाइम विल ऑल्सो इंक्रीज। यप सो कई टाइम हमारी जो डेवलपमेंट में कोड चलती है वो आगे जाके फट जाती है, क्योंकि वहाँ एक्चुअल डेटा मिलता है। सो आई यस सो आई वाज डूइंग द सेम थिंग, एंड मैंने उसको बोला कि तुम रन कर लो। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू वन बेसिक एग्जांपल कि मैं बाकी यस भीड़ से आगे थोड़ा सा कैसे चला जाता हूँ। सो राइट आई टेल राइट देम, मैंने उसको बोला चलो बना लो। ही सेड कि आरबैक परमिशन का इशू है, यूजर नहीं बना पाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो कोड लिख के बना दो। मुझे पता था कि कोड को तो पासवर्ड और एक्सेस मिली हुई है, वो तो बना ही देगा, वो तो जहाँ चाहेंगे वहाँ बना देगा, वो तो प्रोडक्शन में भी बना देगा क्योंकि हमारे पास क्रेडेंशियल्स है। तो उसने हाँ बोला कि वो नहीं, मुझे एक और बंदे ने बताया कि एक कहीं पे फाइल रख दो, उनमें से बन जाता है। बस उसने बोला कि सिक्वल फाइल रख दोगे और एक कॉन्फ़िगरेशन पास कर दोगे कि ये फाइल ट्रिगर कर दो, चल जाता है। मैंने बोला ये हाँ बताओ कि अगर उसका चल रहा है तो हमारा भी चलना चाहिए था। तो उसने ऐसा क्या लिखा है कि नहीं चला उसका। उसने कुछ नहीं राइट किया, उसने बस रन करके छोड़ दिया, उसका काम हो गया, टेबल बन गया। और मोस्ट ऑफ द पीपल डज द सेम थिंग। वो कैसे चल रहा है या इंटरनली उनको कोई मतलब नहीं। बट यस यस मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे होती है, तो मैंने कहा ठीक है बताओ क्या है। तो उसमें एक सेल फाइल लिखी हुई थी। मैंने बोला सेल फाइल ओपन करो। आई जस्ट सेड द सेम थिंग कि सेल फाइल ओपन करो। सेल फाइल के अंदर एक और पाथ लिखी हुई थी, कॉन्फिग पाथ। तो मैंने बोला आप वो कॉन्फिग पाथ ओपन करो। जब मैंने कॉन्फिग हाँ पाथ ओपन किया तो देखा वहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड पड़ी हुई थी, जो कि वो तो वल्नरेबिलिटी भी थी। तो मैंने बोला देखो ये राइट वल्नरेबिलिटी है, हटवा लेना। और ऐसे चला रहा है ये। तो बेसिकली इसका कोड जो है वो उसने स्काला में लिखा हुआ था और ट्रिगर कर रहा था। तो मैंने सेम थिंग उसको बोला था राइट करने। सो दिस इज हाउ आई डू द सेम थिंग। मतलब मुझे कुछ भी मिलता है मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता। मैंने क्या किया, उस फाइल को एक बार ओपन करके देख लिया उसमें क्या लिखा होता है, एंड आई गॉट टू नो एवरीथिंग कि क्यों चल रहा था वो और मेरा क्यों नहीं राइट चल रहा था। सो यू राइट ऑल्सो राइट हैव टू डू द सेम थिंग। आपको कंपनी में जाके अगर आप अपना पोर्टफोलियो बाहर से बना रहे हो, इट लुक्स बैड कि आपको कंपनी में रह के इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, तो वाई आर यू डूइंग आउटसाइड। मतलब आउटसाइड तब राइट करो जब आप कुछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करने वाले हो। राइट सो मोस्टली आई सी दैट वे। सबका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, दिस इज द माइंड। सो तो मुझे आप ये बताओ कि हमने डिस्कस कर लिया कि डेटा इंजीनियरिंग में स्टार्ट कैसे करें, डेटा इंजीनियरिंग में आए कैसे, कौन से टेक्नोलॉजीज और कौन से रेज्यूमे में क्या क्या डालना है, ये सब डिस्कस कर लिया। बट डेटा इंजीनियर करता क्या है, दैट्स द मेन क्वेश्चन। लाइक एवरीवन आस्क्स मी टू डेटा इंजीनियर है, बट लाइक व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली, लाइक व्हाट। तो क्या बताना चाहोगे आपकी डेटा इंजीनियर करता क्या है और डेटा इंजीनियर होता क्या है, पहली बात, और देन करता क्या है। सो डेटा इंजीनियर क्या होता है ये तो आपको नहीं पूछना चाहिए अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो। मोस्टली इफ़ यू विल बी इंटरेस्टेड इन डेटा इंजीनियरिंग तभी आप आए हो, बट स्टिल आई वुड टेल इन अ सिंपलर फॉर्म कि एक डेटा इंजीनियर क्या होता है कि पहले देखो आप जो मान लो अभी हम आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होगे, तो ये यूट्यूब जो है वो डेटा जनरेट कर रहा है कंटिन्यूअसली। आप देख रहे हो आपका स्ट्रीम, आप जहाँ से वीडियो छोड़ के जाते हो वहीं से स्टार्ट कैसे होता है। सो ऑल दोज राइट थिंग्स गेटिंग स्टोर्ड समवेयर। वो डेटा के ऊपर अगर कोई एनालिसिस करना चाहेगा कल को, यूट्यूब वाले कि ये बंदा जो है वो आधे वीडियो देख के हर बार चला जा रहा है इस वीडियो पे, मतलब कि ये वीडियो आई थिंक हाफ के आगे देखने लायक नहीं है, शायद ये कंक्लूजन उनका निकलेगा। बट हाउ दे विल कम टू नो। डेटा जो है वो कंटिन्यूअस जनरेट हो रही है। मान लो स्ट्रीमिंग इवेंट होगी उनकी कोई भी, वहाँ से जनरेट हो रही है। बट
उसको कैप्चर करना, स्टोर करना, मीनिंगफुल वे में लाना, सो दैट कि डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंस पीपल कैन परफॉर्म सम रिपोर्टिंग ऑन टॉप ऑफ दैट या मॉडलिंग ऑन टॉप ऑफ दैट। तो उसके लिए डेटा को एक प्रॉपर फॉर्म में ला के देना। डेटा आर वेरी मेसी इन द रियल वर्ल्ड, मतलब आप जितना सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा होता है। सो सो आप जो यहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख के आधे पर से चले गए, वो आधा कैसे सेव रहता है कभी सोचोगे तो फिर आपको पता चलेगा। तो वो जो आधे पे सेव रह गया और उस डेटा कैशिंग वैसिंग करके जो भी रखा गया है वो कैसे हो रहा है और उस डेटा से आगे रिपोर्टिंग और एनालिसिस कैसे हो रही है, तो उसके बीच में जो ब्रिज है ना, डेटा को क्लीन करके देना एक यूजेबल फॉर्म में जो इतनी तेजी से जनरेट हो रही है, उसके मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस के बीच में बैठा होता है डेटा इंजीनियर, जो कि पूरा डेटा उनको प्रॉपर फॉर्म में ला के दे रहा होता है। आपको एक राइट। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे 3 क्लाउड है, हम्म। मेजर क्लाउड, मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं बट 3 मेजर क्लाउड है, AWS, GCP और Azure। एश्योर, तीनों में क्या यस। लगता है आपको, सेम फील्ड के नाम होते होंगे? नहीं होते होंगे, लेकिन लॉजिक तो सेम है। मान लो हम्म। प्राइसिंग ही, तो कोई प्राइसिंग देता है सब्सक्रिप्शन वाइज, कोई देता है अकाउंट वाइज, कोई देता है प्रोजेक्ट वाइज। मतलब बेसिकली आई वर्क ऑन दिस डेटा, सो मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। सो ओके, ओके। समझो कि ये तीनों क्लाउड अलग अलग फॉर्म में डेटा दे रही है, लेकिन राइट। एनालिसिस तो ऐसे नहीं बोल सकते जाके बिजनेस स्टेक होल्डर को कि इसका ये फील्ड देख लो, इसका ये फील्ड देख लो, इसका ये फील्ड देख लो। वो कहेंगे राइट। मैं पागल लगता हूँ तुमको? तो उनको एक एक क्या बोल सकते हैं, कंसोलिडेटेड रिपोर्टिंग चाहिए, जहाँ पे कि उनको बोलेगा कि हाँ राइट। AWS में इतना कॉस्ट आया, GCP में इतना आया, इतना आया। उनको ये नहीं कि ये राइट। फील्ड देखो, ये फील्ड देखो। उनको एक क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म, कुछ तो उसका टर्म है, जो उस यूनिफाइड लेवल जिस यूनिफाइड यूनिफाइड हो। फॉर्म। हाँ, हाँ। यूनिफाइड फॉर्म में उनको चाहिए। So that यप, is यप। where data engineers comes into the picture. And now, what was the other question? हाँ, what is my day-to-day activity? Like यस, in general, data engineer day-to-day यस। activity. डेटा इंजीनियर करते क्या है? So just like other roles, we also have first a scrum call in the morning, जहाँ पे कि we discuss what we will do today and यप। और उसके बाद मतलब यहाँ पे मुझे एक जोक याद आ रहा था इसका। बोलो, बोलो। सो बेसिकली एक मीम होता है ना कि इन द मॉर्निंग वी डिस्कस व्हाट वी विल डू एंड इन द इवनिंग वी डिस्कस व्हाट वी विल डू द नेक्स्ट डे, जो आज हमने नहीं किया था। यप। सो यप। सो द सेम थिंग, मतलब हमारी भी 11 o'clock 10 o'clock को जनरली एक कॉल होगी, जहाँ पे कि वी डिस्कस कि क्या क्या रोड ब्लॉक्स हैं, कौन कौन सी हुँ। चीज़ें कल हमने करी थी और वो क्यों नहीं हुआ था, एंड आज हम क्या प्लान करने वाले हैं। सो अगर राइट। आप देखो डेटा इंजीनियरिंग में, तो पाइपलाइन बनाने का काम जो होता है वो अराउंड दिन में, अगर फुल फ्लेज डेवलपमेंट चल रहा है तो इंटायर डे यू विल हाँ। बी डूइंग कोड एंड डिबगिंग एंड ऑल। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं चल रहा था, हमारा पाइपलाइन ब्रेकिंग हो रही होती है। जैसे आई हैव बिल्ट मोर देन 15 पाइपलाइंस, तो अभी तो ऐसी हालत हो गई कि वो किसी न किसी का किसी न किसी इन्वायरमेंट में ब्रेक होता रहता है। सो राइट। ऐसी वाली चीज़ हो जाती है। तो मोस्टली आप ऐसा करो कि मान के चलो कि आपका 3-4 घंटे जाएगा डेवलपमेंट में, अगर डेवलपमेंट एक्टिविटी फुल फ्लेज नहीं चल रही है तो 1-2 हाँ, घंटे हाँ, हाँ। डिबगिंग में चला जाएगा, मतलब उसी में अगर डिबगिंग भी ऐड कर लो। उसके बाद आपका जो चेंजेज, मान लो आपने कुछ चेंजेज करे, सो वो चेंजेज हुँ, जो है हुँ। उसका PR रेज करना, उसको अप्रूवल में अप्रूवल करवाना, डॉक्यूमेंटेशन राइट। बनाना, आपने जो जो राइट। फीचर डेवलप करी है उसको प्रॉपर लिख के देना। तो ये सारी चीज़ें राइट। पूरे दिन में हो रही होती है, नॉट जस्ट कि हम इंटायर डे पाइपलाइन बना रहे होते हैं। जस्ट लाइक कि आप किसी प्रोजेक्ट में रियल यूट्यूब पे देखते होगे या मैंने भी जो बनाया है, तो वो तो आई थिंक 3 घंटे मान के चलो। अगर 8 घंटे पूरा अगर काम करते हो, जो कि कोई नहीं करता, बट 8 घंटे में अगर मान के चलो तो 3-4 घंटे ये होंगे 50% ऑफ द टाइम। 50% ऑफ द टाइम आपकी मीटिंग डिस्कशन चलेगी कि इसको अचीव कैसे करने राइट। वाले हैं। एज ए सेड अर्लियर कि राइट। डेटा बहुत मेसी होता है। आप एज केस सोचोगे राइट। एक और जाके दूसरा एज केस फट जाएगा, तो यू हैव टू थिंक राइट। ऑल द पॉसिबल वे, जहाँ पे कि हमारी डेटा डुप्लीकेट हो सकती है, ड्रॉप हो सकती है, गलत हो सकती है। नॉर्मल CSV फाइल ले लो, कॉमा आ जाती है बहुत सारे, तो समझ लो कि कॉमा ही हमें कितनी बार परेशान कर देती है। एक सिंगल एक्चुअली कॉमा, यस। एक्स्ट्रा कॉमा आ गया यप। CSV में, बस हो गया काम। तो ऐसी चीज़ें यप। बहुत सारी आते रहती है। यस। सो तो दिस इज आप व्हाट वी डू। यस, तो हमने अभी समझ लिया कि डेटा इंजीनियर क्या होता है, कैसे होता है और वो करते क्या है। बट लाइक इज़ इट आपने जैसे डेटा साइंस में भी अप्लाई करा हुआ है। हम्म। डेटा साइंस की पढ़ाई भी करी हुई थी। तो आपको क्या लगता है लाइक
is it easier to be a data engineer or is it easier to be a data scientist? Like how easy, basically the question is how easy it is to be a data engineer. सबसे पहला चीज़, अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो तीनों टफ है। चाहे आप डेटा Yep. इंजीनियर की बात करो, एसडी की बात करो या डेटा साइंस की बात करो। जो आप देखते Mm-hmm. हो फ्रॉम पाइटॉर्च, हाँ, फ्रॉम पाइटॉर्च इंपोर्ट दिस एंड देन जस्ट आप दो पार्ट में स्प्लिट करते हो एंड देन रन करते हो, Right. 90% एक्यूरेसी आ जाती है। दैट इज हाउ Right. नॉट रियल वर्ल्ड वर्क्स। ठीक है। तो Right. वहाँ पे भी बहुत सारी फीचर इंजीनियरिंग होती है एंड देन जब आप फीचर इंजीनियरिंग करते हो, इफ यू हैव टू बी गुड एट डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, Right. तो सबसे पहला जो फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी प्रोग्रामिंग। Right. बिना उसके होगा ही नहीं। जैसे लाइक आई वाज आल्सो टॉकिंग अर्लियर, सो यू नो डिजाइन पैटर्न। Right. इवन मतलब मैं जानता हूँ, मैंने कुछ ही प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करी है, बट नाउ सिंस आई हैव लर्नड मोर एंड मोर, अब डिजाइन पैटर्न यूज करता हूँ। बट इफ़ यू आर अ फ्रेशर्स या 2-3 साल का Right. एक्सपीरियंस हो, तो आप ठीक है, कम से कम मॉड्यूलर अप्रोच में कोड लिखने आना चाहिए एंड देन ऑल्सो लीड कोड और गिग्स फॉर गिग्स ग्राइंड करना पड़ेगा। वो Right. लिंक्डइन वाले उस पे मत चले जाना, पोस्ट पे, जिसको नहीं मतलब आई हैव सीन पीपल डिस ये मिसलीडिंग मेनी टाइम्स कि अगर इंटरव्यू में पूछते हो आप ट्री ग्राफ या जो भी, वो इसलिए पूछते हैं ताकि आपका मैक्सिमम माइंडसेट चेक किया जा सके, वो इसलिए नहीं पूछते। Actually. अगर आपसे नहीं पूछेगा, वो आपसे मान लो रियल टाइम प्रोजेक्ट पूछना शुरू कर दे, है ना, और आपने कुछ Mm. प्रोजेक्ट छोटा सा इम्प्लीमेंट कर लिया था यूट्यूब से और उसको इन एंड आउट जानते हो, वो कैसे जज कर पाएगा? वो उसकी तो सारी, आपने क्या लिस्ट यूज करी, डिक्शनरी यूज करी, आप बता दोगे। Right. बट व्हेन इट कम्स टू थिंकिंग लॉजिकली मोर एंड मोर, तो वहाँ पे तो लगती है भाई, प्रोग्रामिंग लगती है। मतलब मैं, आई डोंट नो कितने लोग डिसएग्री करेंगे, बट इफ आई एम द इंटरव्यूअर, आई विल जज यू बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग स्किल्स फर्स्ट। Okay. तो Right. मेरे Right. हिसाब से प्रोग्रामिंग स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फंडामेंटल है, कंप्यूटर साइंस का फंडामेंटल ही यही है। अगर ये नहीं करोगे तो Yeah. आगे Yeah. Yeah. चीज़ें कैसे बनाओगे? और यू आर Yeah. इंजीनियर, यू Correct. आर नॉट मजदूर, जो कि आपको कंटिन्यूअस वही करने हैं, आपको सोचने हैं कि उसको और इम्प्रूव कैसे किया जाए, है ना। वो तो कंटिन्यूअस, फिर Right. ऑपरेशंस वाली टीम तो कर ही रहे कंटिन्यूअस एक ही चीज़ जो उनको करना है, उनको पाइपलाइन अप Yes. रखना है। लेकिन नाउ अडेज ऑपरेशंस टीम्स आर ऑल्सो राइटिंग देयर ओन ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। मैंने देखा है मेरी टीम में ही ना, बहुत सारे लोग अपने खुद के ऑटोमेशन उधर लिख रखे होते हैं कि उनका Oh, काम आसान हो जाए। बाप रे, nice. Nice. सो यू शुड लुक दैट वे कि कुछ नया बनाना है इसके ऊपर, नॉट जस्ट कि हम ऐसे ही कंटिन्यूअस किए जा रहे हैं। एंड इफ यू आर मेकिंग समथिंग, तो आपको आना चाहिए ये सारी चीज़। सो प्रोग्रामिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या था, मैं प्रोग्रामिंग के चक्कर में भूल ही गया। क्वेश्चन ये था कि how easy it is to be a data engineer, or हाँ, how तो is it easy? ईजी है। अगर मैंने जैसे बोला आपको प्रोग्रामिंग आ गया, आपको सिक्वल आ गया, तो ईजी है। लेकिन अगर आपको ये दोनों चीज़ नहीं आ रही है, तो बहुत टफ लगेगा, क्योंकि ये दोनों ही Right. फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं। एंड देन इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो स्पार्क मैंने पढ़ाई है, तो वो आ जाती है। बट एटलीस्ट अगर मैं यही बोलता हूँ कि अगर जिसको पाइथन और सिक्वल आता है ना, वो स्पार्क भी जल्दी कैच कर लेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग भी कैच कर लेगा, और वो बाकी सारी चीज़ें भी कैच कर लेगा। क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग तो और कुछ भी नहीं है। जितना ज़्यादा कोर आपको आएगा, फंडामेंटल चीज़ें आएंगी, उतना जल्दी क्लाउड कंप्यूटिंग आएगा। फ्यू डेज बैक मुझे, मैंने काम नहीं किया है, एडीएफ मैं देख रहा था। एडीएफ लिटरली अच्छा. मतलब स्पार्क का रैपर बना रखा है उन्होंने, और कुछ नहीं किया। उसमें जाओगे, ज्वाइन कंडीशन दोगे, पार्टीशनिंग, मतलब लिटरली अगर कोई बंदा एडीएफ, मतलब जो स्पार्क नहीं जानता है, एडीएफ सिर्फ जानता है, उससे इंटरनल पूछ दो कि ये पार्टीशनिंग जो लिखा है, इसका मतलब बताओगे क्या? मे बी दे विल Right. बी सेलेक्टिंग एवरी डे दैट रेडियो बटन की पार्टीशनिंग करनी है नहीं करनी है, बट दे डोंट Right. नो कि इंटरनली कैसे काम करती है। लेकिन जो बंदा स्पार्क का कोड लिख लिया, उसके बाद वो, उसके लिए वो कुछ नहीं रह जाता है। दे आर जस्ट अ रैपर ऑन टॉप ऑफ दैट स्पार्क सिक्वल कमांड या पाइस्पार्क कमांड। तो समवन Right. एल्स इज डूइंग फॉर योर ऑन बिहाफ ऑफ यू, दैट्स इट। बट हो Yes. इंटरनली वैसे ही रही है। तो जिनको पता नहीं है उनके लिए एक बार एडीएफ का फुल फॉर्म या फिर एडीएफ क्या होता है एक बार जस्ट शॉर्ट में ये बता होता है दो. अज्योर क्लाउड में एक अज्योर डेटा फैक्ट्री, जो कि ईटीएल टूल है एंड इंडस्ट्री बहुत मांगती है। आपको नहीं आएगा तो आप Right. रिजेक्ट हो जाओगे। सो यू Right. शुड नो दिस। बट अगर स्पार्क आती है तो फिर वो बच्चों वाला पीस ऑफ केक लगेगा, बस ऐसा है, कुछ नहीं है उसमें। Right. 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 एंड देन यू नो Uh, पैरामीटराइजेशन एंड ऑल, मतलब उसमें कुछ नहीं है, लिटरली मैंने देखा उसमें कुछ नहीं था। Right. और मे Right. बी मैंने तो आई एम जस्ट पर्सनली यूज नहीं एग्जैगरेटिंग। करी. बट मैंने तो मुझे जहाँ पर्सनली तक, यूज नहीं करी. हाँ हाँ, अच्छा, बोलो आप बोलो. मैं वही बोला था, जहाँ तक मैंने देखा उसको, मुझे नहीं लगा हाँ. कि उसमें कुछ है। मतलब जो इफ एल्स कंडीशन हम लिख के भेजते हैं, वो वहाँ पे फ्लो बना देते हैं। सो बेसिकली यू हाँ. कैन रिलेट टू इट कि अच्छा ये प्रोग्राम लिखूंगा तो ये चलेगा, ये प्रोग्राम लिखूंगा तो ये चलेगा।
लिटरली वैसे दिखते हैं उसमें, बट इफ़ यू हैव वाह, दैट नॉलेज। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कोर फंडामेंटल पे काम करोगे तो ईजी है, नहीं करोगे तो टफ है। एंड एक राइट, और चीज़ बता देता हूँ जो कि आई थिंक 90% ऑफ द लोग नहीं फॉलो करेंगे, फिर भी मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 400 लोगों से मैंने टॉपनेट पे बातें करी होगी। आई डोंट नो नंबर, तो आप देख सकते हो जाके मेरे उस टॉपनेट प्रोफाइल पे, बट हाँ, अराउंड हाँ, 400 लोगों से बात किया होगा। आई कैन गारंटी हाँ, कि 350 लोगों की प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं थी। बाप रे! तो ओके। इस लेवल की चीज़ें हैं। और वो आके क्या बोलेंगे कि सर मेरा सब कुछ अच्छा है, दे विल से द सेम वे, हाँ, सर मेरा सब कुछ अच्छा है, हाँ। प्रोग्रामिंग थोड़ा रह गया। सो सो अगर आप देख रहे हो तो ये वाली नौबत ना आने देना। अच्छा, तो आप जस्ट एक एक बार व्यूअर्स के लिए लाइक आप जब बोलते हो कि प्रोग्रामिंग में अच्छा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लाइक व्हाट इज़ द लेवल ऑफ दैट अच्छानेस कि आप बोलोगे कि इतना आता है तो आप यू कैन प्रोसीड अहेड लाइक इतना लेवल तक तो बेयर करना मिनिमम चाहिए। होना चाहिए, हाँ, ऐसा। अच्छा, हाँ, लाइक लीड कोड मीडियम तक या फिर लीड कोड ईज़ी तक लाइक व्हाट इज़ द लेवल कि इधर तक तो आना चाहिए तब आप अच्छा बन सकते हो लाइक कहला हुँ। सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको सिंटेक्स याद रहनी चाहिए, है ना? बहुत लोगों को हाँ, मैंने देखा है कि वो फॉर लूप लिखेंगे, फिर उसमें आई 1 टू एंड लिटरली 2 लिख देते हैं, 2 तो चलता ही नहीं है। तो मैंने वाह! इंटरव्यू में भी देखा है ऐसे लिखते हुए। तो सबसे पहले तो वाह! आपको सिंटेक्स आना चाहिए, फंक्शंस, क्लास, क्लास तक ही, चलो डिज़ाइन पैटर्न अभी मत करना, तो उसको थोड़ा बाद में कर लेना आप जब एक्सपीरियंस हो जाओ। बट आपको राइट, फंक्शंस, क्लास, अ, लूप, एटलीस्ट लूप और फंक्शन तो आना चाहिए। क्लास फिर भी थोड़े दिन के लिए स्किप कर सकते हो, फ्रेशर्स हो या 1-2 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब राइट, लगता है बट फिर भी चलो मान के चलता हूँ कि नहीं होगा तब भी जाके कंपनी में सीख लोगे आप। लेकिन राइट, फंक्शंस एंड लूप चलाने आना चाहिए। अब लूप चलाना बोलना तो बहुत सिंपल है, या आप देखोगे ट्यूटोरियल फॉर आई इन रेंज 1 टू एन जो भी आपने लिखा है, और वो प्रिंट करके दे देगा, बट वो रियल नहीं है, वो तो बस एक डमी सा नंबर है जो आपको 1 टू 10 प्रिंट करके दे देगा, कोई भी 1 टू 100 जो भी है। सो राइट, रियल लर्निंग आती है जब आप इन सब का यूज करके आप गिग्स फॉर गिग्स, लीड कोड और हैकर रैंक के क्वेश्चन को ग्रिल करते हो। वहाँ पे राइट, आपको एरे स्ट्रिंग, क्योंकि हम डेटा इंजीनियर हैं तो हम ग्राफ वाले चीज़ों पे डील नहीं करते हैं। एंड दैट इज़ वेयर ऑल दिस लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर कम्स की ग्राफ क्यों पूछते हो जब हम राइट, करते ही नहीं है। राइट। उसकी बात हमने पहले कर ली, चलो छोड़ो। तो कम से कम एरे स्ट्रिंग जो है उसको अच्छे से करो, और एरे स्ट्रिंग ना उसी में डीपी भी घुस जाती है, उसी में ग्रीडी भी घुसता है, उसी में डिवाइड एंड कॉन्कर भी घुसता है। बट राइट, उस अगर वो नहीं हो रहा है ना, अगर उसमें टैग लिखी होती है, हर जो अपना प्लेटफॉर्म है ना उसमें टैग लिखी होती है कि ये किसकी प्रॉब्लम है, अगर डीपी लिखा आप स्किप कर दो फिलहाल के लिए, आप बस बेसिक राइट, वाले जो क्वेश्चन है वो करो। तो लीड कोड में आप इजी लेवल के क्वेश्चन करो, और गिग्स फॉर गिग्स में भी इजी लेवल के क्वेश्चन करो, स्कूल और बेसिक्स भी कर लो। यहाँ से आपकी राइट, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगी। उसके बाद जो है, आप 3-4 टेक्निक का नाम बता रहा हूँ, वो 3-4 टेक्निक यूज करना। एक टू पॉइंटर टेक्निक, आपका स्लाइडिंग राइट, विंडो हो गया, राइट, ये हो गया बाइनरी सर्च हो गया, एंड देन हुँ, सॉर्ट हो गया। तो ये 3-4 चीज़ है आप करो, और एरे स्ट्रिंग के क्वेश्चन लगाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा मोस्टली। मतलब अप टू 5 इयर्स तक तो आई कैन गारंटी कि हो जाएगा। उसके ऊपर आप थोड़ा डेटा इंजीनियर की भी स्किल्स जो है थोड़ा ज़्यादा ग्राइंड कर रहे हैं, देन दे आर लुकिंग फॉर सम गुड पीपल, गुड इंजीनियर जो कि ग्राफ और डीपी को भी कर सकते हैं। बट मतलब हाँ, वो भी टफ नहीं है, बट हाँ, थोड़ा टाइम लगता है उसको सीखने में। यप, 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 यप। सो हमने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया है। बस मुझे एक लास्ट का क्वेश्चन आपसे जानना है कि व्हाट इज़ द कॉमन मिसकंसेप्शंस अबाउट द डाटा इंजीनियरिंग दैट द पीपल हैव? कि जैसे आपने सुना मतलब मैं भी सुना होगा कि एक आध मिसकंसेप्शन की मतलब क्या अजीब-सी चीज़ एकदम कि ओह! ये डाटा इंजीनियरिंग में है क्या? ऐसा टाइप लाइक व्हाट आर दोज़ थिंग्स लाइक व्हाट डू यू थिंक? अ, पता नहीं ये मिसकंसेप्शन होगा कि क्या होगा। तो मैंने देखा है कि कई बार लोग मेरे से पूछते हैं टैबलू और पावर बीआई करना होता है क्या? पता नहीं कहीं पे किसी ने बताया होगा, तो उसमें से वो पूछते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, तो मेरे हिसाब हाँ, से एक डेटा इंजीनियर जो है वो नहीं करता जनरली। बट किसी-किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में आपको डेटा इंजीनियर प्लस डेटा एनालिस्ट के रोल दिए हुए हैं तो वो करवाएँगे, बट इन जनरल जो है डेटा एनालिस्ट टैबलू और पावर बीआई पे काम नहीं करता है। तो ये एक मिसकंसेप्शन देखिए। और फिर एक और मुझे लगता है कि
वो जो मार्केट में जाते हैं ना, तो देखो हर कोई अपने हिसाब से बेस्ट बताता है। अब मैं अपने हिसाब से बेस्ट बताता हूँ, मैं अपना राइट पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। राइट मेरा पर्सपेक्टिव में बहुत सारे लोग डिनाई करेंगे, मैंने इतनी सारी बातें बोली, बहुत सारे लोग कहेंगे अरे यार क्या ही बोल रहा है। तो बहुत सारे लोग मेरी पर्सपेक्टिव से डिनाई करेंगे, बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं ऐसा होता है। तो जिनके राइट साथ जैसा होता है वैसा बताते हैं। अब एग्जैक्टली जैसे मान लो आप यूट्यूब पे जाते हो तो बहुत सारे डेटा इंजीनियर्स हैं, जैसे मैं हो गया। अभी एमए का तो वीडियो नहीं आया ज़्यादा बट इन फ्यूचर आएगा तो वो भी बताएगा। देन यप दरसिल परमार हो गया और यप शशांक हो गया। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने यप अपने पर्सपेक्टिव से बताते हैं कि आप अगर डेटा इंजीनियर में आना चाहते हो तो ये करो। यप बट यप उसमें मैं बोलता हूँ कि आप जिसका भी फॉलो करो, बस एक बंदे का फॉलो करो। रोड मैप, रोड मैप की बात कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कोई बोल दिया स्नोफ्लेक, अब वो मेरे से आके पूछेंगे स्नोफ्लेक करूँ क्या। कोई जीसीपी बिग क्वेरी बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। अब वो क्या होता है कि मतलब ऐसे कम से कम ना मेरे से लोग 20-25 टेक्नोलॉजी लेके आ जाते हैं पूछने कि ये कौन सी नहीं करूँ, कौन सी करूँ। तो मैं बोलता हूँ कि मैंने जो वीडियो बनाई है एटलीस्ट मेरे पर्सपेक्टिव में ये बेस्ट काम करता है। बाकी के पर्सपेक्टिव में नहीं कर सकता है, मैं अग्री करता हूँ उस केस में। क्योंकि एवरीवन हैज वर्कड इन डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट वे, डिफरेंट कल्चर, तो उनको उसी का पता होगा। So I guess these are the only questions that I had and मुझे लगता है कि हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली है. But before we end this podcast, do you have any last comments or like anything that you want to share? Anything like it can be related to data engineering, or it can be related to your channel, anything. Do you have any concluding comments or something? ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। एंड Okay. आई थिंक हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। जो डिस्कस किया Yeah. है उसमें से आप अपना समरी निकाल लीजिएगा आप अपने बेसिस पे। एंड Yeah. देन ऑल द बेस्ट फॉर जो भी आप देख रहे हो। अगर आप नई स्विच के लिए देख रहे हो या नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए देख रहे हो, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड वर्क। एंड अच्छे से पढ़ाई करो, कहीं ना कहीं लग जाएगा। आई नो मार्केट की कंडीशन थोड़ी ख़राब है, कंपनीज कम आ रही हैं। सो Yes. या मतलब सिचुएशन तो ख़राब है, दैट वी कैन नॉट डिनाई, बट कहीं ना कहीं तो Yes. लग ही जाएगा। नॉलेज पे फोकस ज़्यादा कीजिएगा। Yes. या दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच. लाइक मैं भी सबको यही एडवाइस दूंगा कि ट्रस्ट द प्रोसेस और बिलीव करो, हमको होना ही है एंड यू विल डू इट. आई आल्सो नो इट, ही आल्सो नो इट. और आपको कहीं भी कभी भी कुछ भी डाउट आ जाए तो कनेक्ट विथ मी ऑन लिंक्डइन, कनेक्ट विथ हिम ऑन लिंक्डइन, फॉलो हिज ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब. दे आर वेरी गुड, ट्रस्ट मी. लाइक आई हैव बीन थ्रू इट. सो लाइक फॉलो हिम. कुछ डाउट आए तो उससे टॉप मेट पे कनेक्ट करो, मुझसे टॉप मेट पे कनेक्ट करो. एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आपको कुछ डाउट आया, कुछ भी कहना होगा तो. और आपको ये एपिसोड अच्छा लगा जेन्युइनली तो ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनको एक्चुअली ज़रूरत हो. बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट Just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.